हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पे हम हर एक विषय पे जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक पहलू पे प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। इम्पैक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज इम्पोर्टेंट। इम्पैक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन here. The industrial revolution also encouraged a movement of the masses toward the cities, which is gives birth to an urban society. The industrial revolution also encouraged the movement of masses toward cities, which is give a birth an urban society. The worker now is lived close to the workshop or the factories, where there is provided is unemployment opportunity. But the working conditions in the factories were miserable, along with the poor housing and hygienic and health condition. The factories owner had only one motives, and that was a make a profit. Another forced the workers to work for a long hours on the low wages. There is an important. There is this time a make a profit, and there is a force the worker to work for a long hour on the low wage, and sometimes 12 to 14 hours daily is working. Women and children were paid a very low wages. The factories were poorly ventilized and mostly dirty, damp, and dark. Do you think this situation continue for the long? Gradually, their workers began to realize their strength. The pressure come from a trade unions. A movement began to save their workers from to the injustice of the factory system, and many laws were made to be reform their working and living condition. You will read up more about it in the coming section on this topic. There was a tremendous increasing in the production, which resulting in a low cost of goods. Human labor was replaced with the machines and their domestical system of production, and come to an end increase in the agriculture production and decrease the food prices. A new source of wealth rose from to the ownership of factories and machineries, and these new groups of people now as the capitalists. They also recognize there is a banking system to be a distribute a capital from a surplus income area to those areas where it is needed. In early 17th centuries, there is the first private bank were opened by the goldsmith, merchant, and manufacturers. This is important. Very soon, industrial revolution spread to other countries. That's important. The industrial revolution spread of other countries. The discovery of trade routes are encouraged the competition among their colonial and imperialist power for expanding their empire of the fulfill their need are raw material. New market and cheap labor also. It is started a race for colonies among the European countries. Rivalry particularly between to the England and France. Later on, Italy, Germany, and other countries is also joined. There is a race, and this imperialist expansion lead to a struggle for a supremacy, and the two is a world wars about the which you will be read further in the lesson. They exploited their colonies and destroyed their traditional social, economical, and political system. And these colonies in turn started to opposing their foreign ruler and fighting for their independence. That is important. यदि बात यहाँ पर हम करें औद्योगिक क्रांति के प्रभाव, तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि उद्योग अगर क्रांति हुई तो इसका प्रभाव हर एक क्षेत्र में देखने को मिला, और इससे कई देशों को बहुत ही लाभ मिला। और कई देश तो जो थे कॉलिज्म के जो है आड़ में जो है दब गए। तो कहते हैं कि कितने देश में बहुत काफ़ी तरक्की हुई थी, कुछ देशों के लिए ये काफ़ी जो है घातक सिद्ध भी हुई, और कई जगह इंग्लैंड ने जो है दूसरे देशों को कॉलिज्म बना भी लिया और उसका शोषण भी किया। तो औद्योगिक क्रांति कई मानने में उन देशों के लिए महत्वपूर्ण थे जहाँ पर औद्योगिक क्रांति अपनी चरम सीमा पर पहुँचा। कहते हैं अगर बात करें औद्योगिक क्रांति के प्रभाव को, तो यही बात यहाँ दर्शाया गया है कि औद्योगिक क्रांति ने शहरी जनता के आंदोलन से प्रोत्साहित किया। यानी औद्योगिक क्रांति ने क्या किया, शहरी जनता के आंदोलनों को काफ़ी प्रोत्साहन किया,
और जिसे एक शहरी समाज का जन्म दिया। यानी औद्योगिक क्रांति ने जो है शहरी समाज को जन्म दिया। क्योंकि देखा जाए तो औद्योगिक क्रांति जो आई वो जो है बेशक जो है इसको शहरों में ही स्थापित किया गया, और शहरों में जब स्थापित हुआ तो वहाँ पर जो है जो मकान बनाए गए और इसने शहरी समाजी का जो है रूप धारण कर लिया। श्रमिकों अब जो है कार्यशालाओं का या कारखाने के करीब रहते थे, क्योंकि ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि जितने भी कारखाने बनाए गए, उद्योग बनाए गए, वहाँ पर उनके रहन सहन के लिए भी व्यवस्था की गई, और जहाँ वे रोजगार के अवसर प्रदान भी मिलते थे तो वहाँ रहना उनके लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण बन गया। लेकिन कारखानों में काम करने की स्थिति, दयनीय अवस्था, स्वच्छता और स्वास्थ्य की स्थिति को साथ दुखी थे, क्योंकि जो काम की अवस्था थी उस समय बहुत ही दुखदायक परिस्थिति थी। कारखाने के मालिक सिर्फ एक ही मकसद था, लाभ कमाने के लिए। ठीक है, जो कारखाने बनाई गई सिर्फ एक ही उद्देश्य से बनाया गया कि जितना हो सके हमें लाभ कमाना है। इसलिए वह श्रमिकों को लंबे समय के लिए कम मजदूरी पर काम कराने के लिए मजबूर करते थे। यानी कम वेतन पे जो है उनसे अधिक से अधिक काम करवाया करते थे। कभी कभी तो 12 से 14 घंटे काम करवाया करते थे, क्योंकि जितने भी औद्योगिक मालिक थे वो सारे के सारे एक ही सपना देख रहे थे कि जितना हो सके लाभ कमाना, और इसके लिए जो है वो मजदूरों का शोषण किया करते थे। इवन देखा जाए तो महिला और बच्चे को भी बहुत कम मजदूरी का भुगतान किया जाता था। यानी बच्चे और महिलाओं के साथ भी वही सिलसिला चलती थी। कारखाने में खराब जो है हवादार स्थिति थी, शोर अधिक होता था, गंदा, नम और अंधेरे होते थे, जिससे काफ़ी जो है महिलाओं और बच्चों पर जो है बुरा असर देखने को मिला। क्या आपको लगता है कि लंबे समय के लिए इस स्थिति को जारी रखा जा सकता था? धीरे धीरे श्रमिकों ने अपनी ताकत का एहसास शुरू किया और ट्रेड यूनियन के दबाव भी बनाया गया। यानी पहले ट्रेड यूनियन नहीं थी, लेकिन श्रमिकों ने अपनी ताकत को जो है और बढ़ा लिया और ट्रेड यूनियन का जो है स्थापना किया। एक आंदोलन कारखाने प्रणाली का न्याय में श्रमिकों ने बचने के लिए शुरू भी किया, क्योंकि यही एक साधन था जिससे जो है अमीरों से बचा जा सकता था। कई कानून काम करने और रहने की स्थिति को सुधारने के लिए तैयार किए गए बहुत से रूल रेगुलेशन, और इसके बारे में अधिक आप जो है अगले पाठ में पढ़ोगे, जहाँ पर बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहेगी। उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं की कीमत में कमी आई। मानव श्रम का जो है स्थान मशीनों ने ले लिया, क्योंकि देखिए जैसे जैसे तरक्की हुआ, कहते हैं जहाँ पर इंसानों को मशीनों से काम करवाई जाती थी वैसे ही उनको मशीन चाहिए थी, और जब मशीन आ गई तो मानव श्रम का स्थान जो है मशीन ने ले लिया और उत्पादन की स्वदेशी प्रणाली समाप्त हो गई। क्योंकि जो स्वदेशी सामान हुआ करता था उसको हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया, और कृषि उत्पादन में वृद्धि और खाद्य कीमतों में कमी आई। फैक्ट्रियों और मशीनों के स्वामित्व धन के नए स्रोतों का उद्गम हुआ, और लोगों के इन नए समूहों के पूंजीवादी के रूप में जाना गया, जो पूंजीवादी के रूप में जाने गए उस समय। उन्होंने अधिक आय वाले क्षेत्रों में, आवश्यकता वाले क्षेत्रों में पूंजी के वितरण हेतु जो है बैंकिंग प्रणाली आरंभ भी कर दी। और कहते हैं 1700 के आरंभ में सुनार व्यापारी और विनिर्माताओं द्वारा पहली निजी बैंक भी खोला गया। तो देखा जाए 1700 शताब्दी में जो है सुनार व्यापारी और विनिर्माता के द्वारा पहली निजी बैंक की स्थापना की गई, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। शीघ्र ही औद्योगिक क्रांति अन्य देशों में भी फैल गई, क्योंकि ये जो औद्योगिक क्रांति थी धीरे धीरे सभी देशों में ये फैल गई। व्यापार मार्ग की खोज ने कच्चे माल, नए बाजार और सस्ते कारीगर की जो आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपने साम्राज्यों का विस्तार करने हेतु निवेश और साम्राज्यवादी ताकतों के जो है प्रतिस्पर्धा को काफ़ी बढ़ावा दिया, क्योंकि सबको जो है सस्ते कारीगर चाहिए थे और वो दूसरे देशों पे गुलामी बना के ही किया जा सकता था। इससे यूरोपियों के देशों में प्रतिद्वंद्विता, विशेष रूप से इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जो है उपनिवेशों के दौर आरंभ कर दी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। बाद में इस दौर में इटली, जर्मनी और अन्य देश भी शामिल हो गए, क्योंकि जो है औद्योगिक क्रांति हुई सिर्फ इंग्लैंड में नहीं हुई, उसके बाद इटली भी इसमें जो है सम्मिलित हो गई, जर्मनी भी, और अन्य देश भी शामिल हो गई। और इन साम्राज्यवादी विस्तारों से जो है स्वच्छता के लिए संघर्ष और 2 विश्व युद्ध हुए, जिनके बारे में आप इस पाठ में आगे पढ़ेंगे। जो विश्व युद्ध के बारे में हम जानेंगे इसी पाठ में होगा, जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। उन्होंने उपनिवेश का शोषण भी किया और इनकी परंपरागत जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली समाप्त भी कर दी।
और इन उपनिवेशों ने विदेशी शासनों का विरोध भी किया और अपने स्वतंत्रता हेतु लड़ाई आरंभ भी की, जिसे हम क्रांति के नाम से जानते हैं।